कहावत सी पंजाब च होगी मशहूर कि रेत बजरी लेनी है ना वो औखी मिलती है, चिट्टा सौखा मिल जाता है। 3 बेटे हैं, तीनों निकम्मे हैं, तीनों को फारगत दी हुई है कानूनी तौर पे। कानूनी तौर पे दी है। ये तो मरने वालों ने कहा एक मर गया तो इन्हू समेट ला। सारी रात मैं रो रो के सुनना वा कि मेरे ना बनया की है। मेरा ऑटो लगा है ये बाहर, ऑटो चलाना मैं। आप ऑटो चलाते हैं? पहले मेरे सोने का काम था, सोने के काम से लाख रुपये जाते थे, लाख रुपये आते थे। अब मैं 10-10 रुपये इकट्ठे कर रहा हूँ ऑटो पे। आप बताओ, इंजेक्शन जो लगाने शुरू हो गया, आप समझोगे नहीं। मैं आपको क्या बताऊँ, आप लेडीज हो, जो इंजेक्शन वहाँ लगाना हो ना अपनी गलत जगह पे, वो एंड है। हमारे घर में एक शीशा नहीं, ये जो शीशा लगा ना ये ऐसे मारते हैं अपने सिर पे, ऐसे शीशियाँ कभी आती हैं तो महल्ले ले आके ले भरा मर जाना ही नहीं थे। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। 25 साल है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा बेटा भी है, 1.5 साल का बेटा है। मैं 8 साल से कर रही हूँ नशा और ये 5वीं बार मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। 5वीं बार? हाँ। मतलब इसके पहले भी आप कोशिश करती रही हैं, लेकिन हर बार वापस से शुरुआत हो गई लत की तो फिर आना पड़ा? हाँ मैम, क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं, उनकी वजह से मैं फिर जाकर लग जाती हूँ और इस बार भी मैं एडमिट हुई हूँ। मैं छोड़ना चाहती हूँ इसको, पर फिर भी कोशिश करती हूँ छोड़ने की। और मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मेरी यहाँ से मेडिसिन चलती है और मेरी डिलीवरी भी यहाँ ही हुई थी जब मैं एडमिट थी और इन्होंने भी डिलीवरी करवाई। और बच्चा कितना छोटा है? मेरा बच्चा 1.5 साल का है। वो पापा ही बैठे है कि नहीं उम्र ना दी दसो मेरी हाँ दे ना, वो भी नशा कर जो लवाता किसी ने बाद खत्म हो गया काम। ये चर तो खत्म हो गया तो फिर ही पंजाब का कुछ बनना, नहीं तो उसरा नहीं कुछ बन सकता। जो लोग नेता लोग बोल रहे हैं इलेक्शन का इशू बुला रहे हैं, आप तो वोट करते हैं? आप वोट करेंगे? पाई नहीं, 11 साल हो गए वोट नहीं पाया। क्यों, आपको नहीं लगता कि थोड़ा प्रेशर आपके वोट? कोई फायदा नहीं। चोर चका चौधरी से गुंडी रन प्रधान, ये हाल है ना, सारे चोर है। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਨੂੰ? ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਖੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਮੰਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। अब तो ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਚੱਲ। 5 ਸਾਲ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰੀ ਭੰਨਾ ਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਟ ਗਈ। ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਘ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਪੰਨੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਿਕਲ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ ਤੇਰਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਲਾ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾ ਕਰ ਦੋ, ਚੰਗਾ ਦਰਿਆ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। दम मारो दम गैंग अब चुप क्यों है, इतना मौन क्यों है? ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿੱਟਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੱਚ ਕਸੂਰ। ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਹੋਣਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? 14। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ? 10 ਸਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਦਰ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਇਹ ਗੰਡਿਆ ਵੀਰ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਟਾਂ? ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਕਬੂਲ ਬੜਾ ਤੜਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਆਦੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਾਕਈ ਛੱਡੋਗੇ? ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ। हमारा जो जुनून है वो क्यों है नशा छुड़ाना? क्योंकि आपकी जो औलाद है, आपने जन्म दिया है गुरु रूप में, वो हमारे भी बच्चे हैं। हमें दर्द ज्यादा हो रहा है। जो बच्चा नशे में बर्बाद हो रहा है, जो घर नशे में बर्बाद हो रहा है, जो हमारी बेटियां, उनकी माँ, उनके बाप जो रो रहे हैं, जिनके बच्चे मरना सन हो गए हैं नशे से, अरे वो आपने तो जन्म दिया है। हम तो संत हैं और संत के लिए वो रूहानी औलाद अपने बच्चे होते हैं। हमें ज्यादा दर्द है, उस दर्द को दूर करने के लिए हम ये मुहिम चलाई है। हमारे दिमाग में एक ही चीज है और वो ये है कि बस नशा हटाना है समाज से। क्योंकि जब आप रोती हैं बेटियों, उनकी माँ, बच्चों की माँ, या वो बेटा हमारा रोता है जो उस बच्चे का बाप है, या परिवार के जो बेटी उसी से शादी की हुई है वो रोती है, या उनके बच्चे रोते हैं, हमें दर्द होता है, हमें दर्द होता है दिलो दिमाग में। ये हकीकत कह रहे हैं आपको। इस वजह से हम आपका साथ चाहते हैं, हमारे जुम्मेवार बच्चों का, हमारे सारे गांव के गांव का, कि हम मिलके अगर चलेंगे हो नहीं सकता कि ये चीज ना दूर हो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा।
ये कुछ लाइनें हैं जो आज पंजाब के हालात पंजाब, जो आज के समय में जो ये आग लगी है ड्रग्स की, इसे समझाती हैं। अगर आप एक टीन हैं, अगर आप एक जेनजी हैं, या फिर अगर आप एक पेरेंट हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये आग आज पंजाब में लगी है, ये आज नहीं तो कल हम सब के घर तक पहुंचेगी। और इस पॉडकास्ट के एंड तक आपके पास क्लैरिटी होगी कि वाई पंजाब इज़ द टारगेट, एक पंजाब ये प्राइम टारगेट क्यों है, और कैसे पंजाब में ये ड्रग कल्चर प्रोपगेट कर रहा है। वो पंजाब जो हमारे कल्चर के लिए जाना जाता था, वो पंजाब जो शूरवीर योद्धाओं के लिए जाना जाता था, हरी सिंह नलुआ जैसे योद्धा जिस पंजाब की शान है, वो पंजाब जो गुरु फ़कीरों की, गुरु महापुरुषों की शिक्षाओं के लिए जाना जाता था, क्यों आज का वो पंजाब नशे के लिए विश्व विख्यात है? क्यों आज के उस पंजाब में ये दहशत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? क्यों उस पंजाब में आज ये गन कल्चर या फिर ये ड्रग कल्चर को इस हद तक बढ़ाया जा रहा है कि एक दहशत का माहौल क्रिएट हो? क्यों आज के उस पंजाब में जो मुग़ल उस समय किया करते थे कि हम किसी की धार्मिक जो तुम माना चाहते हो, जो हम कहते हैं कि तुम ये मानो तुम उसी को मानो, कि वो क्यों माहौल क्रिएट किया जा रहा है? और कैसे इस सब का क्रॉस बॉर्डर लिंकेज है, कैसे जियोपॉलिटिकली भी पंजाब इसमें ड्रग में रोल प्ले करता है, कैसे ISI लिंकेज है इस सब का, और कैसे क्या रोल बाबा राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, व्हाट इज़ द राम रहीम एंगल टू इट, क्या राम रहीम एंगल है इस सब गेम का, ये सब आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें वाई पंजाब ही क्यों, तो इसके काफ़ी कारण हैं। तो सबसे बेसिक जो कारण रहा है कि पंजाब की एक हिस्ट्री रही है, चाहे हम 47 से अब तक देखें या फिर हिस्टोरिकल टाइम्स में देखें, कि पंजाब एक एंट्री गेट रहा है, चाहे जो पहले भी इन्वेजन्स की जा रही। तो साइकोलॉजिकली भी जो पंजाब के लोग हैं वो एक सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, एक उनका ऐसा इंस्टिंक्ट है, एक साइकोलॉजी है उनकी, जिसके कारण जैसे एक कहावत है कि पंजाब में तो शूरवीर योद्धा ही पैदा होते हैं। तो अगर हम इसे सिंपली समझें कि नॉर्मली एक लड़ाई में, एक युद्ध में एक सेना चाहती है कि हम अपने सामने वाली सेना का जो सबसे शूरवीर योद्धा है उसे ख़त्म करें, उसे हराएं, जिसके कारण बेसिकली एक मोरल डाउन होता है सामने वाली सेना का। तो इसी तरह से पंजाब आज के समय में भी इज़ ए एंट्री गेट टू इंडिया, इज़ ए एंट्री गेट टू भारतवर्ष, कि अगर पंजाब को फतेह कर लिया, अगर पंजाब में ये ड्रग को इतना उसका प्रोपगेशन कर दिया, इतने लोग एडिक्ट बना लिए, तो आसान होगा इस इंडिया के सिस्टम को हैक करने के लिए। इसके अलावा और क्या सरफेस हैं, जो ऐसे सरफेस जो इस ग्रोथ को एनेबल करते हैं, जो ड्रग कल्चर है, गन कल्चर है, इसे हेल्प करते हैं पंजाब में ग्रो करने के लिए। तो ऐसे काफ़ी कारण हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर ग्रीफ, कि आज के समय में जो एक फार्मर चाहता है कि उसकी आउटपुट हो वो उसे नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण एक सेंस ऑफ ग्रीफ, ए सेंस ऑफ डिस्प्लेजर, एक सेंस ऑफ स्ट्रेस या डिप्रेशन के में वो गुज़र रहा है, और जिसके कारण वो एस्केपिज़म चाहता है, निकलना चाहता है इस टेंशन से, स्ट्रेस से, जहाँ ड्रग उसे एक यूफोरिया देता है, उसे इस सब से एस्केप करने में मदद करता है, जिसके कारण भी ये चीज़ ड्रग हमारे पंजाब में प्रोपगेट कर रही है। इसके अलावा स्टडीज़ से हमें पता लगता है कि कैसे पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस ड्रग प्रोपगेशन में, कि कैसे पंजाब में ये एक तरह का योयो कल्चर है कि हर एक इंसान कूल बनना चाहता है, और अगर आपने कूल बनना है तो आपने ट्राई करना होगा इन सभी चीज़ों को, आपने चिट्टा को ट्राई करना पड़ेगा। कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसमें
बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे लिंक्ड है पंजाब की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गैंगस्टर्स के साथ, जिसके प्रूफ्स अगर आप कोई भी रिसर्च करेंगे आपके सामने होगा। कैसे वो अपने गानों में चिट्टा, ग्लोक, गन, असला, काली नागनी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं हमारे सबकॉन्शियस में बिठाने के लिए कि अगर आपको कूल बनना है, अगर आपको एक सेंस ऑफ हीरोइज़म लाना है अपने अंदर, तो आपको ये चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पंजाबी सिंगर्स आर ब्रांड एम्बेसडर टू ड्रग इंडस्ट्रीज़, कि वो ड्रग को प्रोपोगेट करने में मदद करने वाले लोग हैं। कुछ गिनती के ही सिंगर्स ऐसे हैं इस पंजाब में जो अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं, जो अपने गानों में ये चीज़ें नहीं, ये नशा, ये गन कल्चर का प्रमोशन नहीं करते। इस सब के अलावा अगर हम देखें कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, कि कैसे पाकिस्तान और चाइना चाहता है हमारे पंजाब को ख़राब करना, हमारे पंजाब की युवा पीढ़ी को ख़राब करना, कैसे ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र किया जा रहा है ड्रग का, जिसके प्रूफ्स अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे आपके सामने आएंगे। अभी 6 दिन पहले ही एक ड्रोन को शूट किया गया तरन तारन के पास बॉर्डर से, जिसके अंदर 13 kg हीरोइन था, और एक ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ भागा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो प्रूव करती हैं कैसे ISI लिंक्ड ड्रग प्रोपगेशन ऑफ पंजाब है। वह कैसे ISI चाहता है रेडिकलाइजेशन करना, कैसे ऐसे रेडिकल ग्रुप्स को पैदा करना जो आज के समय में इस पंजाब में आज़ादी की बात करें, जो एक दहशत का माहौल क्रिएट करें, जो एक्सट्रीमिज़म की बात करें, कैसे टारगेट किलिंग का माहौल पैदा करना, जिसके कारण एक दहशत का माहौल क्रिएट हो, लोग डरें पंजाब में रहने से, जिसके कारण उनके मंसूबे पूरे हो सके। जो आधा काम ISI या ऐसे कुछ रेडिकल ग्रुप्स कर रहे हैं इस दहशत को फैलाने के लिए, तो आधा काम हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। वो पॉलिटिशियंस जो अपने भाषणों में ये कहते हैं कि नशाबंदी की जाए और नशे से हमें लड़ना ज़रूरी है, कैसे हमें अपने यूथ को बचाना है इस पंजाब के ग्रोथ के लिए, वही स्टेज से उतरकर अपना हिस्सा मांगते हैं। और ये पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें हैं कि कैसे किन नेताओं का नाम आता है जब कोई भी जब कोई भी ड्रग केसेस की बात आती है। और ये शायद हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है कि वो छोड़े भी जाते हैं। और जो ये वही पॉलिटिशियंस हैं जो किसी संत के ऊपर निंदा करने में सबसे आगे रहते हैं कि ये तो डिफ़ॉल्टर बंदा है। और ये सब पब्लिक डोमेन में हर पंजाब के बच्चे को पता है कि जो भी ड्रग प्रोपगेशन है इस पंजाब में वो उन्हीं नेताओं के कारण है, कैसे उनके लिंक्स हैं ISI के साथ। अब एक एंगल इसके अंदर आता है राम रहीम एंगल। आप सोचेंगे कि कैसे ये सब, चाहे हम ISI की बात करें, चाहे हम ये गन कल्चर की बात करें, ये सिंगर्स और एंटरटेनर्स कैसे लिंक्ड हैं गैंगस्टर के साथ, चाहे इस सब की बात करें, पंजाब में ड्रग प्रोपगेशन की बात करें, तो ये सब क्यों लिंक्ड हो रहा है बाबा गुरमीत राम रहीम के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे नहीं देती है कि मैं किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को खुश करूँ एक संत की निंदा कर कर। मुझे कोई मिशनरी पैसे नहीं दे रही है कि मैं फैक्ट्स को छुपाऊँ। जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये सब फैक्ट्स हैं, और अगर आप चाहें तो आप इंडिपेंडेंट इन चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हैं। और ना ही मैं किसी बाबा का अंधभक्त हूँ, मैं किसी बाबा को ग्लोरीफाई करूँ। ये सब फैक्ट्स हैं जो अगर आप इंडिपेंडेंट रिसर्च करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, आप खुद इन कंक्लूजन्स पर पहुँच सकते हैं। तो वाई बाबा गुरमीत राम रहीम, व्हाट रोल डू ही प्ले? तो 2000 से 2017 तक एकमात्र ऐसा इंसान जिसने 5 से 5.5 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा दिया हो, जो अपने 30 से 35 मिनट के सेशन में भयंकर से भयंकर लोगों के नशे छुड़वा दे। आप सबको ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब की कसम, आज के बाद
ये 3 बुरे काम कभी ना करना। नंबर 1, नशे ना करना, शराब ना पीना। नंबर 2, मांस अंडा ना खाना। नंबर 3, पति पत्नी का रिश्ता सही है। पति पत्नी के बिना उम्र में अगर कोई बड़ा है तो माँ बाप, बराबर का है तो बहन भाई, और छोटा है तो बेटे बेटी के समान मानना है। ये 3 वचन मांगते हैं आपसे, 3 वचन। ऐसा कार्य जो कई सैकड़ों नशा मुक्ति केंद्र नहीं कर सक रहे और एक ये इंसान अकेला इन कार्यों को कर रहा है, तो जिसके कारण ही वॉज अ पोटेंशियल थ्रेट टू ISI कि अगर ये इंसान इसी दर से नशा छुड़वाता गया तो कल को ये हमारे बिजनेस के लिए खतरा है, कल को ये माफिया के लिए खतरा है। कैसे पिछले समय में भी जब वो बाहर थे उन पर अटैक्स किए जाते थे गन से, RDX से, ह्यूमन बॉम्ब के ज़रिए, क्योंकि अगर ये इंसान इसी दर से, इसी रेट से नशे छुड़वाता रहा तो ही इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट कि हमारे बिजनेस ना ख़त्म कर दे। और सेकेंडली अगर हम बात करें कि एक अलग फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है, वो है थ्रेट टू पॉलिटिशियंस की बाबा गुरमीत राम रहीम वॉज अ थ्रेट टू पॉलिटिशियंस की जिस तरह की उसकी पॉपुलैरिटी है, जहां वो जाता है इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह के लोग, जिस तरह से पागल हैं लोग उसके पीछे, तो वो पोटेंशियल थ्रेट है हमारी कुर्सी के लिए कि कल को ये इंसान राजा बनकर ना बैठ जाए। जिस तरह से बाबा फिल्म बनाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है और लोग उसके पास नशा छोड़ने आ रहे हैं, तो ये कल को खतरा है हमारी गद्दी के लिए। बहुत आशीर्वाद बेटा जी, शाबाश पुत्र, शाबाश, बहुत मान है तेरे ते बेटा जवाना, और अच्छे काम करी, परमात्मा जरूर बरकत पाऊगा। शाबाश पुत्र, शाबाश। के लिए और चाहे अगर हम अब बात करें कि कुछ ही दिन के लिए चाहे बाबा बाहर आया, उसने इतने लाख लोगों का नशा छुड़वाया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने चश्मे उतार कर देखने की ज़रूरत है। जो मीडिया प्रोपेगेंडा के तहत, जो मीडिया ट्रायल के तहत हमारे आँखों पर ये चश्मे चढ़ाए गए हैं, इससे हटकर हमें सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। क्यों? हमारे यहाँ पर एक आज भी सबूत है कि जब इंग्लैंड के अंदर मैकाले ने भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचाया तो मैकाले ने कहा भारत गुलाम कैसे होगा? बोले भारत के संतों को चरित्रहीन करने का षड्यंत्र रचो, कीचड़ के दाग फेंको उन पे। क्यों? क्योंकि भारत के संत भारत को ऊर्जा देते हैं, तेज देते हैं, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देकर। तो ये कुछ कारण है जिसके करके ये सब इस पूरे ड्रग सिनेरियो में, ड्रग गेम में एक राम रहीम एंगल इसके साथ आकर जुड़ जाता है। और कैसे ये वो चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हमसे छुपाई जाती हैं, जो चीज़ें अगर हम जानेंगे तो हम इतने कैपेबल होंगे कि हम एक इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट नज़रिया डेवलप कर सकें और सच को सच और झूठ को झूठ मानकर अगर कोई इंसान अच्छे काम कर रहा है उसके साथ जुड़ सकें, जिसके कारण ये मीडिया प्रोपेगेंडा, मीडिया ट्रायल या ऐसी चीज़ें चलाई जाती हैं कि जो अगर एक इंसान ऐसी चीज़ें कर रहा है उसे दबाया जाए। तो हमारा ये रोल बनता है, हमारा ये धर्म बनता है कि हम ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आएँ और कैसे ये चीज़ें सामने लाकर एक चेंज को इनिशिएट करें, कैसे हम खुद को और हमारे परिवारों को इस नशे की आग से बचाएं। और ये सब इंफॉर्मेशन था कि कैसे ड्रग इस पंजाब में फैलता है, कैसे पंजाब ही क्यों प्राइम टारगेट है, कैसे क्या रोल इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री इसमें प्ले करती है, क्या रोल ISI इसमें प्ले करती है और क्या एक संत का रोल इस सब के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर आपको लगा इससे कि इसमें कुछ अच्छा बात की गई है, अच्छी बात की गई है, अच्छा मैसेज दिया गया है, तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो ये इंफॉर्मेशन है,
ये और लोगों तक भी जाए, ताकि एक इंडिपेंडेंट सोच जनरेट हो उनके दिमाग में। और ये था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। नशा बने ने सारे करके देखे, जिंदगी साडी नरक बनी पई थी। मेरे माँ प्यो, मेरे भैन भाई मेरे सारे पिछे फिरदे जो किते नशा करदा किते ना डिग जे। मैं इंजैक्शन लै रहा थी दिहाड़ी दे विच 4-5 इंजैक्शन लै रहा था। इन्ना बुरा हाल थी साडा, मेरा कारोबार सा जमी ठप्प हो गया। गुरु जी दे दर ते आए असीं, गलती बख्शी उन्होंने। अज मैं लोगों को नशा छुड़ाउण दी प्रेरितां दे के अज मैं डेरे सच्चे सौदे नाल आके मेरा किड्डा मर्जी कारोबार होवे, पर मैं नाम जीवां नूं लैण वास्ते की मर्जी होवे मैं करदा नहीं। हुण तुसीं अज किन्ने जीव लैके आए नशा छुड़ाउण? भाई जी मैं 40 जीव लेके आया, बस भर के लेके आया सी नशा छुड़ाउण वास्ते। परमात्मा दी जो औलाद है वो संत पीर फकीर दी औलाद हुंदी है। और बड़ा दर्द है कि जिथे गुरु साहिबाना दी पाक पवित्र गुरबाणी दी बरसात होनी चाहिए है, अज उत्थे चिट्टे दी बरसात हो रही है। बड़ा दर्द हो रहा सानू कि ये चिट्टा साडे बच्चों दी खास करके पंजाब विच जवानी नू काला कर रहा है। बड़ा दर्द है सानू इस गल दा। सो उस परम पिता परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि हे मालका रहमत कर, इस धरती तो नशा खत्म हो जावे। अगर साडे गुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता अगे भी अरदास है कि सारे बच्चे इस पंजाब दे विचों नशा छड्ड देण, बल्कि तरक्कियां करन, होर कम्मां विच तरक्कियां करन, अच्छे कम्मां विच। मालक अगे अरदास है। सो इसी लिए कई सज्जन कहते हैं भाई गुरु जी, बाबा जी या कुछ लड़के गाली दे के भी कहते होंगे ये नशा छुड़ाया जाए। अरे भाइयों, कहाँ तो धर्म के सज्जनों, आप सारे हमारे साथ आइए, आप सारे मिलके इस नशे को, नशे रूपी दैत्य को भगाएं। मजा आ जाएगा और बड़ी जल्दी ये भागेगा। आप सबको आह्वान करते हैं हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के नुमाइंदों को, कि सारे मिलकर चलते हैं। एक बार समाज को तो साफ कर लें, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे।